right? Even for you also, the classes will be available. There is a channel, YouTube channel, NICS Institute. So this channel, you can subscribe on YouTube. You'll find a playlist of classes. You will get, 1 year JE, 2 year JE. I also teach physics for 11, 12. Those classes will also be there. And then 26, 28 in the playlist, you'll find these classes. I mean, generally these classes will be uploaded next day. Like today is Saturday, so this today's class would be there on there tomorrow. So 400 marks paper is there, out of which 200 is aptitude. 100 is maths, and 100 is drawing. Tell me, which is your dream college? Which is your dream Sir, college? SPA Delhi or IIT Roorkee. Okay. So So SEPT SEPT. Ahmedabad. So SEPT is not through JEE paper 2, it is through NATA, Yes. right? But all SPAs like SP Delhi, SP Bhopal, SP Vijayawada, all NITs, CCA Chandigarh, all government colleges are through JEE paper 2. And for getting into SP Delhi, the kind of marks you need is around 300 plus. If you're 300 plus, you're definitely in top 50 in JEE paper 2 ranks. If it's 280, then it'll be SP Bhopal. 270 plus, it could be, SP Vijayawada. Generally, students score 185 plus in aptitude. Earlier, you used to get 200 also in aptitude because aptitude wasn't very tough that time. Nowadays, what they have done is they give some questions which are GK questions and morning, afternoon, bato, and they are really tough. So that way, to score 200, 200 becomes slightly difficult, but 185 is quite gettable in aptitude. Drawing is generally common. Drawing is something, all of you have good hand. That's why you are doing architecture. So generally, people score anywhere 40 to 70 marks. And here the range could be 180 to 185, right? So if I go by the lower total, it would be 120, no, 220. But our target would be around 300. We're talking about SP Delhi. SP Delhi, you have 400 marks maths, aptitude, sorry, 100 marks maths, 100 marks drawing. So in drawing and aptitude can score around 220 plus 230, 240 also. But the rest has to come from maths. What do you marks in maths? 80, okay. No worries. Now you work hard because 11th and 12th marks would matter because JEE paper 2 में पूरा का पूरा 11th syllabus आएगा, 12th भी आएगा. And of late, they have rationalized the syllabus. That is, whatever you study in 11, 12 maths, the entire would be there. But of course, level is slightly higher. Then comes maths. JEE Maths 2 has the same level as JEE Maths paper 1. Questions will not be very tough, but generally questions are lengthy. They're time consuming. And as it is, there's a pressure, that in this 3 hours, you have to finish aptitude also, drawing also, and maths also.
if you really study hard during these 2 years, aptitude you can finish in 30 to 35 minutes. That means 50% of the battle is won in 30 to 35 minutes out of those 3 hours. Then for maths, you need minimum 90 minutes time because the question are a little lengthier. As it is, there's a lot of pressure also. And for negative marking, there's 1/4 negative marking, 25%. Aptitude also. And maths also you have +4 -1. That is for correct answer, you'll get 4 marks. For incorrect, it'll be -1. So 25% negative marking is there. So we have to somehow minimize on this also. We can't afford to get negative marks. So we'll have a strategy how to answer questions which you don't know, but still you can answer them correctly. जनरली मैं बताता हूँ कि अगर 4 ऑप्शंस में से मान लो we are sure that 2 options are not correct, they are incorrect, ठीक है? अगर तुम्हें इतना पता लग जाता है then you can always take a chance. यहाँ पे सारे पेपर तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे. So if you have crossed 2 options, that these 2 options not correct, you always take a chance. That is, हम क्या करेंगे? उसको आंसर करेंगे. Because we have to somehow reach to that score of 300 plus. तो मान लो you answer six questions where you have seen that 2 options are not correct, and the remaining 2 you have taken a chance. So by simple law of probability, 33 question would be correct. तो 3 क्वेश्चन जो करेक्ट है उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे तुम्हें? +12. And 3 incorrect question, you lose 3. And still you're getting how many marks? +9. +9 का मतलब होता है your rank has improved by 500 or maybe 1000. So that kind of difference is there. Vote percentage also plus NATA score also. I'll come to SEPT as well. पहले हम JEE की बात कर लेते हैं. But SEPT is a private college, unlike SPA, which is a क्यों ऐसे मना कर दोगे अगर मिल जाएगा तब भी? एसपी मिल जाएगा तब भी नहीं कहा जाओगी? ऐसा मत बोलो. People are mad for SPA, just like just IITs of architecture. So there'll be 50 questions of aptitude. 4 marks is 200 marks. 25 questions of maths. This is again 100 marks. Out of these, there'll be 2 questions in drawing, 50 marks each. Okay? In 25 questions में maths में 20 questions would be MCQ with negative marking, and 5 questions will be integer type. That is, you don't have option, but you have to fill in the numbers. So that's how 25 questions are there in the maths, JEE paper 2. Now, in 11th class, the chapters are sets, relation, function. इससे एक या 2 questions. तो मैं approximately breakup दे रहा हूँ JEE paper 2 में. मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं ऑफ लेट ऑफ द लास्ट मेनी इयर्स. Set relation function, I'm including relation in 12th class also, and function of 12th class also. 1 to 2 questions are there. Then you have complex number. एक क्वेश्चन आएगा यहां से, चाहो तुम लिख सकते हो सारा. Sequence series. 1 question. Quadratic equation. 1 to 2 questions. Now, coordinate geometry.
जो कि 11th का पार्ट है, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसमें आता है स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन. कोनिक सेक्शन में वी हैव सर्कल, parabola, ellipse, and hyperbola. So from coordinate geometry, there'll be 3 to 4 questions. Matlab, this is a chapter of 11th class from where major questions, like 3 to 4 questions is a big number. 3 to 4 questions will be there in the entrance examination. When I write trigo, trigo means 11th class ka trigo also, and there's one chapter, inverse trigonometry in 12th class. The trigonometry of 11th and inverse trigo of 12th, there'll be one question. Permutation and combination. This is a completely new chapter for you. You haven't studied this so far up to 10th class. There'll be one question. Binomial, again a new chapter for you. There'll be one question. Probability. This was a little bit in 11th, 9th and 10th, both I think. And this is the only chapter which is there in 11th also and 12th also. 1 to 2 questions. Then बाकी चैप्टर्स सारे 12th के आएंगे, which is basically majorly you have integration, differentiation, vector 3D, all those chapters are there, which I'm not writing at the moment. That we'll do later. Another entrance exam for architecture is NATA, where you have your merit score is basically 50% your board marks and 50% would be your NATA score. तो नाटा में 50% बोर्ड के मार्क्स ऐड होंगे. अथर्व, तुम्हारे कितने मार्क्स थे मैथ्स में 10th में? Sir, 82. Okay. And science? Science 91. All right. So in case of NATA, we have merit score, like somebody scored 98%, say in board, and his NATA score is says 150 out of 200. तो नाटा का मेरिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा? 50% ऑफ 98%, मतलब कितना हो गया ये? 49. और 50% ऑफ नाटा स्कोर, तो 200 का 150 हुआ, दैट इज 100 का कितना हुआ? 75. तो 75 का 50% लिया जाएगा, बिकॉज दिस नाटा स्कोर इज आउट ऑफ 200. सो बेसिकली इसका 1/4 लिया जाएगा. 1/4 कितना हो गया इसका? 150/4 जल्दी बताओ. 150/4. ऐसा मत बोलो. 37.5. So for SEPT, you need around 85 plus kind of merit score. ठीक है? तूने बाहर देखा होगा, there were around, last year we got first rank in SEPT, and there are many students who went to SEPT as well. So this is through NATA. NATA में maximum colleges are private, like SEPT is there and USEP is there. All these are
this is a government college, only government college, but Sagis remaining colleges are private. JEE में all the colleges are government colleges, highly reputed, like SPA Delhi, Bhopal, all SPAs, Delhi, Bhopal, Vijayawada, NIT, Trichy, Warangal, they are very famous, very popular, almost as good as IITs. They are through JEE paper 2. तो अभी स्कूल में क्या शुरू हुआ है सब लोगों का? मैथ्स में क्या हुआ? तुम्हारा तो सेट चल रहा है. व्हाट अबाउट यू? इज दैट सेट्स फंक्शन रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक हो? So I'll start with sets today. And I'll be, each chapter we discuss here in the class will be in detail because our focus is entrance. First, I'll do the basics, NCRT plus then extra level of entrance, and then MCQs. Your test will be completely MCQs. All right? If you have any doubt, you can ask me without any fear. Divya, Atharv, Jess, Raina. Yes, sir. आज Yes, sir. आज मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, मैथ्स की क्लास दोनों दिन होगी. लाइक मैथ्स you'll have 2 days. That is, आज क्या है? Saturday and Tuesday. Both the days maths would be there. Okay, sir. Tuesday Okay. को मैथ्स एंड ड्राइंग होगा एंड सैटरडे को मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड होगा. It'll be like this. Okay, sir. My introduction is, I'm Sanjay Bhatnagar, BTech Mechanical, IIT Roorkee. I'll be teaching you maths. I teach maths and physics both. There are some of you who take physics classes also from me. Defined set. What is a set? जिन लोगों ने sets कर लिया है. Well-defined collection of objects. Okay, if I ask that in this particular class, how many of you got good marks in maths in 10th class? How many of you got good marks in maths in 10th class? Will I call it set or not? You got good marks in maths? सबका अलग होता है. मतलब this is very subjective. अभी दिव्या तुम्हारे 99 है मैथ्स में, Yes, sir. तो हो सकता है उसको लगे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, 1 mark कट चुका है. बट somebody who is satisfied might feel कि 70 marks is good है. So it's very subjective thing. It is not a set. But if I ask how many of you got 95 plus marks in maths, then it would be a set. And if I ask how many of you got 100 marks in maths, that will also be a set. If I ask you how many of you got marks above 50 in 10th class, that's also a set. उसमें तो इनफैक्ट ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा. सबके सब लोगों के 50 के तो गवाही है मैथ्स में. इसमें मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं है, तो दिस वुड बी ए नल सेट. So let's define a set. लिखो set की definition. A set is well defined. A set is well defined collection of objects. A set is well defined collection of objects. Now, what is the meaning of well defined? Yes, some kind of characterizing property by which you can either include or exclude a given element. लिखो. मैंने सेट की डेफिनेशन क्या लिखवाई? राइट, लिखो इसमें. Here well defined means
some characterizing property well defined means some characterizing property, some characterizing property by virtue of which, by virtue of which a given element, by virtue of which a given element can be included or excluded, can be included or excluded. So that's a set and that's a characterizing property जो हम यूज करते हैं. हम लोग का ग्रुप बन चुका है ऑफलाइन स्टूडेंट का. तुम हाँ नहीं ना मैं. हाँ फिजिक्स का तो बन गया बट इसका नहीं हुआ ना. मैंने तुम लोगों को एक वो भेजा हुआ था ना ग्रुप में ऑनलाइन में, तो मैंने भेज दिया था असाइनमेंट. देखो जरा ग्रुप में. आई हैव सेंड यू एन असाइनमेंट. You have to answer basically the question number 1. Which of the following are the sets? Meanwhile हम लोग क्या करेंगे, अभी वो उसकी हार्ड कॉपी आई नहीं है मेरे पास असाइनमेंट की. उसका एक को क्लिक करो. Let's answer first question. Now you know that how to define a set. Something which is well defined is a set. तो फोन लाइन नहीं होगी ना. इधर आ जाओ, उसके पास बैठ जाओ. So using this definition of set, answer question number 1. अथर्व, Yes, sir. ग्रुप में असाइनमेंट डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 करो उसका. Okay, sir. Excuse me, sir. Yes. So, can I see the recording tomorrow? I won't be able to attend. So चलो ठीक है. वो YouTube पे मिल जाएगी ना? हाँ कल हो जाएगा उसमें. आज वो तुम उसको वो कर लेना सब्सक्राइब NICS इंस्टीट्यूट. ठीक है. Okay, sir. And I'll try to do the assignment ठीक. जितनी हो सके. ओके. Thank you. जिस भी क्वेश्चन में वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है वो सेट नहीं होगा. बट समथिंग विच इज वेल डिफाइंड विल बी ए सेट. रीड द क्वेश्चन एंड देन यू कैन राइट यस और नो, है ना. ओए फर्स्ट 2 का आंसर बताओ क्या है. फर्स्ट 2 आर सेट्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑल. द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स. टैलेंटेड राइटर मतलब अगेन वेरी सब्जेक्टिव. व्हाट अबाउट थर्ड वन, द रिवर्स ऑफ इंडिया. It will be the collection of even integers. It will be a set. Collection of difficult topics in mathematics. It can't be because again, it's very subjective. The collection of books written by Chetan Bhagat. Yes, it'll be.
So that's a finite number, and that's defined also the collection of most dangerous animals in the world. It can't be. कुछ लोगों को तो lizard से भी डर लगता है, उनके लिए वो भी most dangerous है. लगता है तुम्हें? नहीं. So it can't be. दिव्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. The collection of prime integers होगा? Yes. The collection of all questions of this chapter, it will be. The collection of vowels, Yes, Yes. sir. Yes, sir. the collection of all months of a year beginning with the letter J. Mm. Yes. Yes, sir. And can you tell me how many are the months which start with from J? Or 3. or So 3. June भी है. हाँ, ठीक है. And the team of 11 best cricket batsmen of the world. No, sir. Again, Not a set. right. So now you know what is a set and how to define a set. अब किसी भी set को represent करने के दो तरीके हैं. There are two ways to represent a set. Number one is set builder form. And the second one is tabular form. Roster method. और roster form भी बोलते हैं इसको, listing method also. So a set can be defined or explained in two ways. One is set builder form, and the second one is tabular form, roster form, or listing method. What is set builder form? In set builder form, we represent a set by writing some of its characterizing property. लिखो. In set builder form, a set is represented by writing some of its characterizing property. जबकि टेबुलर फॉर्म में क्या हुआ? In tabular form or roster form, we basically list some or all the elements of a given set. In roster form or tabular form, we list some or all the elements of the given set. We list some or all the elements of the given set. अब जनरली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वी राइट इट बाय कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट्स. जैसे कि इफ आई राइट सेट n कर्ली ब्रैकेट्स x सच दैट x, किसको कैसे रीड करना है? x such that x is a natural number. तो हमने इसका कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी लिख दिया. सो दिस विल बी कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. बट द सेम थिंग अगर इसको मैं एक रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना चाहूँ या लिस्टिंग मेथड में, तो आई ट्राई टू लिस्ट सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. वी ऑल नो दैट नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से. एंड देन इट्स अंडरस्टूड कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, एंड सो ऑन. The same set has been written in the form of रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड. तो या तो कुछ एलिमेंट लिस्ट करेंगे हम ताकि नेक्स्ट इज अंडरस्टूड, और इफ इट्स अ फाइनाइट सेट देन वी कैन राइट ऑल द सेट्स आल्सो. जैसे अनदर सेट ए इज 0 1 2 3 4 5. फिर मैंने इसका लिस्टिंग मेथड से इसको मैंने लिखा है, रोस्टर फॉर्म से लिखा है. एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज these are whole numbers also, these are integers also, दोनों हो सकते हैं. इसी को मैं I can write in the set builder form also. कैसे? x such that x, कई सारे ways हो सकते हैं. x belongs to natural number, this symbol is for belongs to. ठीक है?
इसको बोलते हैं एप्सिलॉन. x is x can't be natural number. X is whole number and x is less or equal to 5. ये हो सकता है. 5 से छोटे सारे होल नंबर 0 से 5 हो गए. और क्या हो सकता है? x such that x is integer. integer भी हो सकता है I. and x is, I can add this way also, but ये गलत हो जाएगा बिकॉज इंटीजर में नेगेटिव भी आ सकता है. आई नीड टू राइट दिस. तो -1 और 6 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 0 1 2 3 4 5. सो गिवन set can be either represented by listing method, roster form, or by other method also, that is set builder form. set builder form को हम listing method में कन्वर्ट कर सकते हैं roster form में, और roster form को we can convert into listing method. If I write some set B, which is, say, x such that x square plus 1 is equal to 0, x is a natural number. Can you convert this into roster form? बताओ, सॉल्व करो. कौन सा नेचुरल नंबर है जो किसको सेटिस्फाई करेगा? तो कोई नहीं, अगर होता है तो उसको मैथ्स में क्या बोलेंगे? नल सेट. दिस इज नो एलिमेंट नेचुरल नंबर जो किसको सेटिस्फाई करे. तो दिस इज अ नल सेट. तो नल सेट को लिखने का तरीका है या तो उसको ओनली कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट इनसाइड दिस, or you write simplify, because no natural number would satisfy this. If I write another set C, which is x such that x square minus 4 equal to 0, convert this into हाँ, वो भी कर सकते. सिंपल फॉर ऑल ये होता है. x such that x square minus 4 is equal to 0. Convert this into roster form. क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे तो दो एलिमेंट आएंगे, -2 भी आएगा, 2 भी आएगा. So both are basically the same sets. So now you understand what is a roster form and what is set builder form. दिव्या, देखना क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? इज इट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे अब. डिस्क्राइब इन टेबुलर फॉर्म. तुम्हें रोज वो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कन्वर्ट करो. इसके सारे पार्ट करना है. ये आ जाओ ना इधर. देयर इज नो हरी, टेक योर ओन टाइम, आराम से करो. So do we have to convert it into roster form? या दैट्स राइट. जब सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करते हैं एक ही स्पेसिफिक आंसर आता है, बट अगर रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो यू माइट गेट मोर देन वन आंसर.
Divya and Athar, you can also write your answer in the chat box if you want. Okay, sir. Okay, sir. अक्षिता, फर्स्ट टू के आंसर बोर्ड पे लिखो। कर लिए? आओ बोर्ड पे करो, बोर्ड पे लिख दो फर्स्ट टू के आंसर। यही है? यही है फर्स्ट टू के आंसर, देखो। हम्म, सिया, नेक्स्ट टू तुम करो। कौन सा? थर्ड वाला? यार, तुमने कर लिया? कर लो, एक बार करो। हम्म, कर लिया? करो। दिव्या, थर्ड का आंसर क्या है? एक, Third, हाँ, sir, I didn't get that. देखो थर्ड वाले I में was not क्या था, able to यू see बिन it. गिवन एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? दिस इक्वेशन इज
एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 49, राइट? और एक्स क्या दे रखा है हमें? होल नंबर दे रखा है। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो डालोगे तो जीरो माइनस जीरो इज नॉट 49। वन सब्स्टिट्यूट किया, वन माइनस वन इज नॉट 49, ये भी नहीं हुआ। टू डालोगे तब भी नहीं आएगा, थ्री डाल के भी नहीं आएगा, फोर डाल के भी नहीं आ रहा है, फाइव डाल, द मोमेंट यू सब्स्टिट्यूट फोर तो क्या आ रहा है? 64 माइनस फोर, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसके बियॉन्ड में देखना ही नहीं है। अगर फाइव सिक्स तक नहीं हो रहा, फोर तक नहीं हो रहा, मतलब इट कांट बी पॉसिबल. So it's basically a null set. So either you write this or you write 5. It's a null set. It does not have any element in it. कोई टेस्ट हुआ है स्कूल में? कौन सा? अच्छा. बाकी हो गए? फोर फाइव सिक्स करो, बोर्ड पे आओ. हुआ? ठीक है, देखो. हाँ, ऐसा होता है इन ए सेट repetition ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर ऑर्डर इज इमटेरियल. लिख लो ये बात. इन ए सेट repetition of elements and their order is not important or is insignificant. In a set, repetition of elements and their order is immaterial or insignificant.
इलाहाबाद में ए कितनी बार आ रहा है? 4 times. So you can write only once. L is coming out twice. You read only once. And the seventh was, so तुमने order change कर दिया क्या? X Z X is a perfect square में क्या लिखा तुमने? मैंने वो मिस कर दिया. Perfect square और मिस कोई बात नहीं. So perfect square is was the fourth question, fifth question. तो perfect square में क्या आएगा? 1, 4, 9, 16 and so on, right? सेवेंथ में इट्स मल्टीपल ऑफ 9 बट लेस देन 100 ना. तो अगर लेस देन 100 है, हाँ हाँ, ये आगे डॉट डॉट ऐसे नहीं जाएगा, 99 तक होगा. इसे फाइनाइट सेट. हम्म. और फोर्थ वाले में क्या था? डिविजिबल बाय 3. हम्म. तो 54 लेस देन 54 में कौन सा आएगा? 51 आएगा. ये हो जाएगा. 8, 9, 10 तुम लिखो. बताता हूँ चलो. Eighth is x, such that x is a two-digit number whose sum is 8. वो सारे 2 digit नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 आ रहा है. सोचो. सबसे पहला डिजिट जिसका सम ऑफ डिजिट्स इज 17, है ना? देखो 17. और क्या हो सकता है? 26. 35. हाँ. देन 4 से स्टार्ट होने वाला भी होगा. 55 कैसे होगा? 55 में 8. 53. 62. अब वो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे. देन 71. और बस. कुछ और हो सकता है इसके अलावा, दिव्या, अथर्व? No, sir. क्यों? 80 हो सकता है क्या? सर 80। अच्छा हाँ, यस 8 plus 0 also, यस, yes. 80 इज ऑल्सो देयर. ठीक है. नेक्स्ट करो क्या. एक्स अदर एक्स इंटीजर बिटवीन 2 and 3, 3 इंक्लूड. ठीक है, सही है. 10th वाला करो. एक्स इज इवन बिटवीन 50 to 400. राइट. ठीक है. रिमेनिंग कौन कर रहा है? तुम करोगी.
यहाँ कर दो। हम्म। प्लस माइनस होता है जब ये बॉर्डलेस हटेगा, प्लस माइनस आएगा। 10th शायद इसने कर दिया था, 10th 11 से कर। ठीक है ठीक है। माइनस और 2 से और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे। बिटवीन -2 and 2 ऑल इंटीजर्स। कुछ मिस किया है तुमने? देखो 0 नहीं आएगा। मॉड एक्स लेस और इक्वल टू 2 का मतलब है 2 और -2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं। ठीक है। हाँ इंक्लूड होगा, बिकॉज इसमें देना क्वेश्चन में तुम ये इंक्लूड साइन है ना। अरे दोनों हो गए। देखो मॉड एक्स मतलब प्लस 15 है। एक्स इज इंटीजर बिटवीन -1/2 टू 9/2। कौन सारे कौन से? -12 और 9/2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? और क्यों वो इंटीजर होते 3.5? हाँ तो 4.5 से छोटा इंटीजर कौन सा हुआ? 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, वो आएंगे। लिखो, इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4। ये इसका आंसर। ठीक है। नाउ यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। पिक्चर में क्वेश्चन 3 है, उस पिक्चर में नहीं है। अरे सबके मेरे पास नंबर करना पड़ेगा ना सबको। इसका तो मैं हार्ड कॉपी दूंगा नेक्स्ट टाइम। अब ग्रुप बन जाएगा ना तो फिर क्या हो, तुम टेंशन में क्यों हो? हो गया। मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को। Next time I'll give you hard copy also, and there'll be, your group formed. So write the following set in roster form. N is a natural number, na? 1, 2, 3. Yes.
अब फर्स्ट वाले सेट में हमें दे रखा है A1 की वैल्यू 1 दे रखी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज A1। तो बेसिकली इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। हमें A1 ऑलरेडी दे रखा है 1। इस रिलेशन में तुम्हें n को 1 डालना होगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1 तो क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू 3A1। A1 कितना है 1, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, मतलब A2 हो जाएगा। सिंस A1 इज 1, an plus 1 is equal to 3an, substitute n is equal to 1, so that will give you A2 is equal to 3a1, but a1 is 1, मतलब A2 की वैल्यू 3 आ गई। दिस वे यू फाइंड फर्स्ट 5 वैल्यूज एंड दैट्स इट। फिर डॉट 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 कर देना, फर्स्ट 5 नंबर्स निकाल लो। दिस विल नॉट बी AP, दिस विल बी GP। करो एक बार निकालो। अथर समझ में आ गया क्या करना है? नो सर। देखो, सेट में हमें दे रखा था, ये जो सेट है ना A, इट बेसिकली कंटेन्स an क्या है, एलिमेंट है सेट के, वेर n इज नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस। तो जब n को 1 डालेंगे तो A1 आएगा, n को 2 डालेंगे A2 आएगा, 3 डालेंगे A3 आएगा, टिल A5 एंड देन डैश डैश डैश, ठीक है। यस सर। अब हम A1 तो दे रखा है, A2 यहाँ से आएगा, इसमें n को 2 डाल दो, n को 1 डालो। ओके इस सर। इक्वेशन में n को 1 डाला मैंने, तो ये हो गया 1 + 1 A2 इज इक्वल टू 3a1, बट A1 ऑलरेडी गिवन है 1, तो उसके लिए 3 आ गई। 3। नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, इसी इक्वेशन में n को 2 डाल दो, n को 2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, A3 इज 3 इक्वल टू 3a2। इंटू 2। व्हाट इज A2? 2। A2 तो मैंने निकाला हुआ है 3, यस 3। तो A3 9 हो गया। ओके सर। तो ऐसे A5 तक निकाल लो एंड दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर सेट्स, राइट दिव्या? Yes, sir. कर लो। हम्म, A4 कितना आ रहा है? A5 इतना ही काफी है, इसका मतलब द गिवन सेट A इज 3 9 27, ये है ना? A1 को करेंगे ना? हाँ। हम्म, ये कैसे किया, n को 1 डाला ना, n को 1 डाल के 1 + 1 हुआ ना, ये कहाँ निकला है? अच्छा फिर तो ये तो 3 है ना, ये an 3a2 आएगा ना, ये A2 कितना निकाला तुमने? A2 यहाँ लिखो पहले, A2 इज 3।
इसको पूरा लिखो, जैसे तुमने 3 डाला है ना इसमें, तो ये 3A3। A3 कितना है? A4 कितना? A4 आ गया 27। ये पूरा लिखो इसको। मान लो सेट ए का मैं तुझे रोस्टर फॉर्म लिखवाना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या हो सकता है रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो हमारा आंसर आ रहा है, कैन यू राइट इट सेट बिल्डर फॉर्म? करो, ट्राई टू राइट सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट 1392781 डैश डैश। इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखो अपने आप से, राइट इट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हो गया। लिख दिया? लिखो, क्या लिखोगी? हाँ, इतनी लंबी कहानी क्यों? x such that x is equal to 3 to the power n, n is a whole number। ऐसे ही लिख सकते हो। n को तुम 0 डालोगे तो 1 आएगा, n को 1 डालोगे तो 3 आएगा, n को 2 डालोगे तो 9 आएगा। और क्या हो सकता था? x such that x is equal to 3 to the power n minus 1, n is a natural number। n को 1, सब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 डाला तो 3 की पावर 0 1 हो गया, 2 डाला तो 3 की पावर 1 आ गया, एंड सो ऑन। तो इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब से सेकंड पार्ट करो, बी पार्ट करो। हम्म। भाई बी पार्ट में A1 A2 की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी दे रखी है, एंड द रूल इज दिस, ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें तुम n को 1 डाल देना, आंसर आ जाएगा। एक बार n को 1 डालो, बताओ क्या आ रहा है। जो इक्वेशन दे रखी है ना, उसमें n को 1 डालो, फिर n को 2 डालो, फिर n को 3 डालो। इस इक्वेशन में n को 1 डाल के क्या आ रहा है? दिव्या कर लिया बी पार्ट? Yes, sir. I'm doing. I have A3 निकाल लिया, A4 निकाल रही हूँ। हाँ, A3 कितना? 2 आ रहा होगा। Yes, sir. सिया, क्या किया? अरे, इतना सिंपल है, मेरे से भी हो जाएगा। देखो n को 1 डाला मैंने, पूरा लिखना, पूरा लिखा करो। A3 A2 प्लस A1। A2 A1 कितना दे रखा है? फिर 1 + 1 कितना होता है? आ गया A3। फिर n को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 तक करना है तुम्हें, टिल 5।
कितना आ रहा है? A4 कितना आ रहा है? 3। कर लिया तुमने? करो बोर्ड पे। सर इसका आंसर 2,3,5,8,13 है। यस। इस सीक्वेंस का एक नाम भी होता है, याद है तुम्हें? इस सीक्वेंस में ईच टर्म इज बेसिकली सम ऑफ द प्रीसीडिंग टू टर्म्स। देखो जरा, यस तुम्हारी सर। सीक्वेंस बन रही है, उसमें हर टर्म उसके पहले की दो टर्म का सम आ रहा है। यस सर। फिबोनाची सीरीज है ये। हालांकि एक इंडियन सेज था, उसने इसको डिस्कवर किया था, बट देन अथर्व तुम्हारा हो गया? So just doing it. हम्म। लिख के किया तुमने? पूरा लिखा है? पक्का? हाँ। वहाँ लिख दो। हम्म। डैश डैश आएगा। पूरा पाम हाँ। सो दिस इज फिबोनाची सीरीज। तो इसमें क्या हो रहा है? 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 8। 3 + 5 8। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 + 8 13। ठीक है, ऐसे तुम घर पे करते रहना। तो दैट्स फिबोनाची सीरीज। अभी तक जो किया है वो समझ में आ गया? सेट, सेट के डेफिनेशन, सेट के दोनों टाइप्स, और कन्वर्ट सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर। अगला क्वेश्चन इसमें वो है कि वी बीन गिवन रोस्टर फॉर्म, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। इसमें तुम्हारे एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, हो सकता है दो लोगों के डिफरेंट आंसर हो, बट वो सेम हो गया। तो यू बिन गिवन हियर रोस्टर फॉर्म, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इट मे बी पॉसिबल दैट योर आंसर वोंट मैच, बट दे विल बी करेक्ट। हाँ। हाँ, 1 मिनट से कर लो।
जैसे पहला क्वेश्चन उसको देख के कुछ कुछ होता है दिमाग में, क्या क्या है ये? व्हाट आर दीज नंबर्स? ये नंबर है क्या? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर? होल नंबर इंटीजर्स है ना? तो विल राइट एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। और फिर कहाँ से कहाँ तक इंटीजर आ रहा है तुम्हारा? -4 to 0। तो यू मे राइट लाइक दिस, ये भी हो सकता है। somebody else might write this way: x such that x belongs to integer, -5 से बड़ा, 0 से छोटा और इक्वल। कोई और ऐसे भी लिख सकता है। ये सारे आंसर सेम है। ऑल आर इक्वल ओनली। ये सारे सेम आंसर हैं, बिकॉज इनको जब तो रोस्टर में कन्वर्ट करोगे तो -4 to 0 ही आएगा। ये भी हो सकता है। Even this is also correct. So all these four answer represent same roster form. करते जाओ, रुकना मना है। वो असाइनमेंट किया क्वेश्चन फिजिक्स वाला? बहादुर, कब करोगी? अथर्व, दिव्या सेकंड करो। Sir, done. गुड। लेट Done. क्या किया सेकंड वाले में, अथर्व बताना। Yes, sir. So in the second one, I've written x such that x belongs to natural number हम्म and root x is greater than equal to 2 and less than equal to 7. 1 मिनट में क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड था 4 9 14 4 9, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। Yes, sir. और परफेक्ट स्क्वायर 4 से लेके 49 तक है। Yes, sir. तो परफेक्ट स्क्वायर्स है ये 4 9 से लेके 49 तक। तो तुम क्या बोल रहे हो? एक्स एज दैट एक्स। X belongs to natural number हाँ। and root x is greater than equal to 2 and less than equal to 7. रूट एक्स ग्रेटर। Then equal to 2 हम्म and less than equal to 7. ये होगा। तो Sir, I have done x is a perfect square when x is smaller than 50. ओके, वो हो सकता है। लेकिन उस केस में उस केस में पता है क्या, 1 भी आएगा। 1 भी तो आ जाएगा। 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। Yes, sir. अथर्व ये देखो, ये थोड़ा गलत हो रहा है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, पूरी इन इक्वेशन को इस तरह से आता है। तो इसमें तो ये भी तो हो सकता है, 4 5 भी आ सकता है इसमें तो। √5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, √6 भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको। Okay, sir. ठीक है। तो Okay, इसको sir. तुम क्या करोगे, इसको ऐसे करो। हम्म हाँ, ऐसे लिख लो। n इज, ये कर सकते हो। Okay, sir. x इज n स्क्वायर वेर और या फिर दिव्या ने बताया x इज अ परफेक्ट स्क्वायर and x is between 49 and 4।
ये भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर भी चलेगा, फिर यहाँ पे एक्स आएगा यहाँ पे, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा फिर। हम्म। थर्ड में क्या हो रहा है? नंबर्स आर बेसिकली मल्टीपल ऑफ 4, है ना? x such that x is equal to 4n, n is तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सेट जो है ना पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अगर मान लो, हाँ, 4 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दोबारा होता फाइनाइट, लाइक 4, 8, 12, सिर्फ इतना होता फिर करना पड़ता मुझे। तो फिर हम इसमें लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 4n, एन की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल, और ये फिर लिखते हैं। क्या है फिफ्थ? Sir, I have completed all. बट प्राइम 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो 1 के अलावा सारे प्राइम नंबर है, तो यू कैन से दैट 1 एंड ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल नंबर्स विच आर प्राइम इंक्लूडिंग 1। दिव्या, तुमने फोर्थ का कौन सा क्वेश्चन था ये? फिफ्थ का क्या आंसर किया? Sir, x is such that x is a prime number. X is equal to prime number and 1. हाँ, x is a prime number and 1 including 1, because 1 is not a prime number, उसमें 1 भी आ रहा है। क्या है 6 में? 0 है। तो बहुत तरीके हैं 0 लिखने के। अथर्व 6 वाला किया? Sir, I wasn't able to do the sixth one. ये बहुत सिंपल है, 6 देखो मेरे से भी हो जाएगा। क्या करना चाहिए? 0 है ना, x को होल नंबर ले लो और लिख दो x लेस देन 1। 1 से छोटा कौन सा होल नंबर है? या फिर अगर होल नंबर तुम्हें पसंद नहीं है, x इन इंटीजर -1, ये कर दो।
या ये भी लिख सकते हो x such that x is a number discovered by India. So 0 was discovered in India. 17 19 दोनों प्राइम नंबर है. 17 एंड 19 दोनों प्राइम नंबर हैं. तो प्राइम नंबर बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन है ये? नाइन्थ है. तो 17 एंड दीज आर प्राइम नंबर्स. तो या तो मैं ये भी लिख सकता हूँ x such that x lies between x is a prime number and 19 and 17 कर दे. 17 और 19 में जो प्राइम नंबर्स हैं वो ये है. अगर तुम्हें प्राइम लिखना पसंद है तो ऑड भी लिख सकते हो. x such that x is an odd number and it is between 16 and 20. See, 16 और 20 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 17 and 19. दिव्या, तुमने क्या लिखा था इसका? Sir, I wrote x is such that x is a prime number between 15 is greater than x is greater than 20. ओके राइट, वो भी हो सकता है. तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है. रोस्टर फॉर्म से अगर तुम कन्वर्ट करते हो सेट बिल्डर में, मल्टीपल आंसर्स विल बी पॉसिबल. ओके सारे. अथर्व, कहाँ पे गाड़ी अटकी? Sir, 5. Oh, 5 तो कर लिया था ना हमने यहाँ पे. no, एक्स. the 10th one in which it's given 5. अच्छा, नल सेट के तो Yes. इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, कुछ भी लिख दो. A student of class 10 who score 102% marks. ऐसा हो सकता है कभी? A Hmm. person in the world whose height is 12 feet. A null set. और मैथमेटिकली करना है तुम्हें. x such that x square plus 4 is equal to 0. X is a real number. और बहुत सारे और भी तरीका हो सकता है. x such that x is a natural number, x less than 1. इसका भी नल सेट आएगा. x 1 से छोटा कोई होगा ही नहीं नेचुरल नंबर. x such that x is a natural number, x lies between 1 and 2. 1 and 2 भी कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं. सो नल सेट को डिफाइन करने के इनफाइनाइट तरीके हैं. हम्म. ये 2/3 3/4 सिक्स्थ वाला ना. इसमें तुम देखो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना. तो क्या कर सकते हैं इसमें? x such that x is equal to n over n plus 1. n 1 से शुरू कर दे, नहीं 2 से. और कहाँ तक जा रहा है ये? 9 तक. क्या हो गया? या तुम ये भी कर सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो. n plus 1 by n plus 2 भी कर सकती हो.
उस केस में n 1 से शुरू हो जाएगा, ये भी हो सकता था। तो जिन लोगों ने नहीं किए वो सारे इसके रिमेनिंग पार्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास I'll continue from here only, और नेक्स्ट क्लास में हार्ड कॉपी भी दे दूंगा असाइनमेंट का, ठीक है। सो एंडिंग द क्लास अथर, बाकी क्वेश्चन कर लेना, दिव्या तुमने कर ही लिए थे। ओके सर। विल Okay. कंटिन्यू फ्रॉम ओके सर। हियर। Thank you, sir. थैंक यू सर।